नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। मेघालय सहित पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। इस समय त्रिपुरा और मेघालय में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव पूर्व मौसम जो त्रिपुरा में दिख रहा था, वही अब मेघालय में भी दिखने लगा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी इस समय मेघालय में हैं। वे यहाँ कई कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही हैं। इस बैठक में उम्मीदवारों को टिकट जारी करने पर बातचीत चल रही है। आगामी चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं। एनपीपी ने पहले ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जो 32 उम्मीदवारों की है। एमडीए की एक और सहयोगी यूडीपी ने भी पहली सूची जारी कर दी है। लेकिन मेघालय में तमाम पार्टियां अकेले ही क्यों चुनाव लड़ना चाहती है? क्या राज्य की सबसे बड़ी पार्टी एनपीपी की पकड़ कम हो रही है? आज मुद्दा में मेघालय के राजनीतिक पहलुओं पर करेंगे बात। कार्यक्रम के इस भाग में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार दीपक वर्मा, मेघालय से हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास भी जुड़ेंगे, न्यूज एडिटर नवरुम गोस्वामी भी हमसे जुड़ जाएंगे और इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अभिजीत मजुमदार हमसे जुड़े हुए हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सुनाते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का चुनाव को लेकर आज दी गई टिप्पणियां। AITC Chairperson Mamta Banerjee, as well as the General Secretary of AITC, is on a 2-day visit to Meghalaya. Can you please brief us on what is being lined up? Yeah, it's an opportune moment for the Honorable National Chairperson to address the foot soldiers of the party. We'll set the trend, we'll set the momentum as we prepare ourselves to go to the people and seek their mandate to serve the people. We're looking forward for that. Events are lined up to tomorrow, and she has arrived a day earlier. So a crucial meeting is underway right now of the TMC party workers. Yes, that's exactly. And please remember, this program tomorrow is basically confined to the grassroots workers. Idea is to ensure, as desired by Didi, to connect with the foot soldiers from every block from across the state. Is the list of candidates finalized, and is there any meeting lined up with the AITC Chairperson regarding this? More or less in respect of some of the constituencies, but official sharing of this information will be timed in a manner which is considered as appropriate. Okay. So are you going in all the 60 seats? That also, the whole finalization that pertaining to how many numbers of seats we will be contesting, they'll be shared with all of you on the right and appropriate time. Yeah. And you are going solo? As far as the fighting the election is concerned, yes, we will go solo, and we will look at to people. I think idea is to remind people that Meghalaya, the people of the state of Meghalaya, must understand the fallout of giving fractured mandate and the ramification thereof. Well, as you know, she's arrived today, and tomorrow, first thing in the morning, we'll be having a small meeting, and then at past 12, Honorable Chairperson will meet the families of the deceased of the Mokro incident, and also those who were injured. After that, we have a party workers meeting at the State Central Library at 1 o'clock, which will be followed by a pre-Christmas celebration at 4. So that is that's the itinerary, yes. Well, she's here today only, and any party crucial meeting lined up for today? No, not today. It's normal practice is that when Honorable Chairperson travels, the first day she normally doesn't hold any meetings because it's a long journey, so she's a little fatigued. So, but subsequently, then she takes all the meetings, yes. Since Meghalaya is going to polls, so are there any meetings going to be held for the poll strategy or? That's right. That is an ongoing process, continuous process, and we have with us also our National General Secretary, he'll be with us, Abhishek Banerjee. He'll be there with us, and we'll carry on the strategy together. Have you finalized the list of candidates? We are coming close to that now. That's right. So do you think that her visit will help TMC to gain ground here in Meghalaya? Of course it will.
She is the face of the people of the Trinamool, grassroots. And I think we are the same here too. Therefore, any visit by a the chairperson of the party, in itself instills a lot of confidence in us, and also reposes a faith and confidence in the people, stating that they have taken the trouble to come. It's just not that they have just sent somebody to monitor the situation. So the interest shown by the chairperson is in itself an indicator that they mean business to serve the people of the state. So just one query. Is it true that TMC is finding it difficult to even field 60 candidates in all the constituencies? No, it is not difficult. The question is not of difficulty of fielding candidates, it's a question of getting the right people. Because the TMC has its ideology, and we work on that. Now, if anyone doesn't follow that ideology or doesn't adhere to the ideologies of the party, obviously we just can't pick up anybody and put him in and set him or her up as a candidate. That's the point. So are you fielding candidates in all the 60 We are constituencies? trying, yes. We're trying to field in all the constituencies, like I said, depending on the person who will be coming to join us. And you are going solo? Solo. That's right. तो हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास के साथ बातचीत में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जो बातें कही हैं उस पर आपने गौर किया होगा कि किस तरह से ममता बनर्जी आज राज्य में हैं और वहाँ पर मुकुल संगमा और उनके साथ के जो भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अकेले ही जाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो चुन कर लोगों को पार्टी में ले रहे हैं जिनसे जीतने की उम्मीद है। तो तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही है आने वाले चुनाव में जाने के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का लगभग 2 दिन का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ दीपक वर्मा शिलांग से जुड़े हुए हैं पत्रकार। दीपक का आपने गौर किया होगा कि जो पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस है, वो पहले यहाँ पर नहीं थी, अचानक से कांग्रेस पार्टी टूटकर तृणमूल कांग्रेस हो गई और अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस एक तरह से वहाँ न के बराबर है और दूसरी पार्टियां जो तृणमूल कांग्रेस है उसका प्रेजेंस काफ़ी देखा जा रहा है। इस बार के चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? नेता हैं वो देखिए, अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो पहले मेघालय का जो भी चुनावी जो स्तर था वो 2 कोणीय था, जैसे कि कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी। उसके बाद भाजपा के आने के बाद ये त्रिकोणीय हो गया। लेकिन ये पहली बार है कि ये चुनाव इस बार एक बहुत बड़ा स्तर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब टीएमसी आ गई है और टीएमसी जो है उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है कि नहीं, मेघालय के चुनाव में मतलब उनको एक अच्छा प्रदर्शन करना है। जीत हार अलग बात है, लेकिन एक तरह से कहे तो टीएमसी का एक एडवांटेज पॉइंट ये है कि अगर वो मेघालय में आए तो उन्हें एक बहुत बड़ा चेहरा मिला, जैसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेहरा। बाकी जैसे बीजेपी भी आया था तो उतना बड़ा चेहरा उसे नहीं मिला था, लेकिन टीएमसी को एक एडवांटेज पॉइंट है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है मुकुल संगमा एक बहुत बड़ा चेहरा है, ना केवल मेघालय के लिए बल्कि पूर्वोत्तर कांग्रेस के लिए भी उन्हें माना जा रहा था और वो इसमें जुड़े हैं। तो टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट ये रहा है। और दूसरा बात ये है कि जो चुनावी प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें टीएमसी ने जो अपना ताकत झोंका है और जिस तरह से वो मतलब कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं, वो एक तरह से कहा जाए, और उसमें ममता बनर्जी का आना, तो इससे पार्टी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ तो मतलब फ़ायदा पहुंचेगा ही। अगर हम ये नहीं कह रहे कि पूरा ही फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन हाँ, कुछ फ़ायदा उन्हें पहुंच सकता है। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे न्यूज़ एडिटर नवरुण गोस्वामी। नवरुण गोस्वामी से सवाल करेंगे। आपने कहा है कि पार्टी में एक कद, मुकुल संगमा का एक मुख्यमंत्री का कद होता था, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता हैं वहाँ के, और उसी तरह से ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वो वहाँ ठहरी हुई हैं। लेकिन टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिजीत मजुमदार, अगर आपकी पार्टी को हम मेघालय में देखें तो सिर्फ पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो एकजुट हुए हैं, लेकिन अभी तक आप चुनाव में नहीं गए हैं। ये पहला चुनाव होगा जब आप दमखम से मेघालय में अपना भाग्य आजमाएंगे। किस तरह की तैयारी हो रही है? इस बार जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए
जो पहले भी जो यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, उनका जो पापा है पुन्ना सान्गा, वो भी तृणमूल कांग्रेस मेघालय में स्थापित किया था, वो भी तृणमूल कांग्रेस में ही था। और तृणमूल कांग्रेस का नाम मेघालय का एक एक गांव गांव में सबको मालूम है। और इस बार चुनाव में जब पहले कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर था वो भी हमारा तृणमूल कांग्रेस में आया, और इस बार दीदी ममता दी जब उधर चला गया, 100% श्योर कि इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस विपुल वोट से जीतेगी। जी, आपको पूरी उम्मीद है कि तृणमूल कांग्रेस अब बहुमत के साथ मेघालय में आ जाएगी, लेकिन उन पार्टियों पर आपका क्या ख्याल है अभिजीत मजुमदार जी, जो एनपीपी हैं सबसे बड़ी पार्टी, और दूसरी पार्टी यूडीपी, बीजेपी, जिनमें आपके भी कुछ नेता जुड़ रहे हैं, यूडीपी में आपके भी कुछ नेता जुड़ रहे हैं, उन पार्टियों पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, जिसको जुड़ना है वो तो जुड़ेगा, लेकिन आपका जो ये लोग का जो पार्टी है, ये लोग का जो मुरब्बी है वो पहले तृणमूल कांग्रेस में ही था, और अभी जो तृणमूल कांग्रेस उधर का प्रधान विरोधी दल है। और इस बार का चुनाव आप 100% श्योर जे तृणमूल कांग्रेस आएगा। बीजेपी का बात ही छोड़िए, बीजेपी तो उधर में कभी नहीं था, सिर्फ 2 सीट ही तो जीता था पिछले इलेक्शन में। तो बीजेपी का नाम निशान मेघालय में नहीं है और नहीं भी होगा। क्यों? जो जात पात का राजनीति कर रहा है, जो जिस टाइप का जो हम क्या खाएगा, क्या चीज करेगा, वो भी बीजेपी ठीक करेगा, वो भी बीजेपी सिलेक्ट करेगा जो ये चीज करो, ऐसा होता नहीं। मेघालय का जो आम जनता है वो लोग एडुकेटेड है, वो लोग को मालूम है जो किसको वोट देना चाहिए। और मेघालय में आपका 20% का माफिक बंगाली वोटर है, और बंगाली वोटर दीदी छोड़ के दूसरा को देगा ही। इस बार का जो चुनाव हुआ है वो लोग को मालूम है जो इकोनॉमिकली टोटली फेल है, सेंट्रल गवर्नमेंट फेल है, स्टेट गवर्नमेंट फेल है, स्टेट गवर्नमेंट का जो जो प्रोजेक्ट है वो फेल है, जो एम्प्लॉयमेंट ग्रो करना चाहिए वो 5 साल में कुछ किया नहीं। ये लोग बीजेपी के साथ जोड़ के से लौटा है, और जो शांति था जो पहले जो था वो चीज अभी नहीं है। अभी माफिया लोग कोयला का ऊपर डिपेंड होकर कोयला का माफियागिरी चल रहा है। तो इस बार का जनता जनता जनार्दन एकदम ठप के रखा है जो इस बार चुनाव तृणमूल कांग्रेस का दीदी का साथ है, जी। हमारा जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का साथ है। और इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस आएगा, और तृणमूल कांग्रेस जैसे वेस्ट बंगाल में काम किया है, जैसे घर घर में आपका सब कुछ देता है, घर घर में आपका सब फैसिलिटी देता है, उस टाइप का फैसिलिटी मेघालय में भी चालू हो जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस इस बार जीतेगा। जी, हमारे न्यूज एडिटर नवरुण गोस्वामी हमसे जुड़े हुए हैं। नवरुण, पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है मेघालय में कि हर कोई कह रहा है कि हम सोलो जाएंगे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या एनपीपी की पकड़ कमज़ोर हो रही है? क्यों अलग जो पार्टियां हैं जो एनपीपी के साथ भी एमडीए गवर्नमेंट में है वो भी बोल रही हैं कि हम अकेले जाएंगे? इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? जी रविंदर, ये कुछ नया नहीं है मेघालय पॉलिटिक्स में। अगर हम देखें मेघालय पॉलिटिकल हिस्ट्री को तो हर बार यही होता है कि पार्टी सोलो ही जाते हैं। प्री पोल अलायंस का जो ट्रेंड है नहीं, वर्मा जी बैठे हैं वो बता सकते हैं, प्री पोल अलायंस का कभी ट्रेंड रहा ही नहीं मेघालय में। पार्टीज़ ऑलवेज गो सोलो, यही ट्रेंड रहा है। और पोस्ट पोल जो है एक अलायंस बनता है। और हमने ये भी देखा है कि मेघालय में एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट, फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट का भी एक ट्रेंड है। सो पोस्ट पोल अलायंस जो है, अभी अगर हम देखें जो टॉप की पार्टीज़ है, चाहे एनपीपी हो, चाहे अपोजिशन टीएमसी हो, चाहे रीजनल पार्टीज़ यूडीपी हो या फिर बीजेपी हो, सबको पता है कि अलायंस करना है। इसलिए कोई भी प्री पोल अलायंस नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी खुद से चाहिए, हम खुद से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो है पोस्ट पोल लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं। मैं और एक जो अभिजीत मजुमदार जी कह रहे थे टीएमसी के कि बंगाली वोटर्स की बात कर रहे थे, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। बंगाल और मेघालय सेम नहीं है, बंगाल और असम भी सेम नहीं है, बल्कि अगर मैं उसकी बात करूँ। और ये जो एक जनरलाइजेशन है वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते मेघालय में कि जो बंगाली वोटर है वो टीएमसी के लिए वोट करेगा। अगर आज हमने हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास ने मुकुल संघा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे बात की थी। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट लिस्ट है, कैंडिडेट लिस्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लेकिन जो
पूरी लिस्ट है वो अभी तैयार नहीं है, शायद से कुछ दिन बाद आएगी। और एक सवाल पूछा गया नॉर्थ ईस्ट लाइव से, मुकुल संगमा से पूछा था कि क्या आप सारे के सारे 60 सीटों पे लड़ेंगे। उसमें भी उन्होंने आज ये नहीं कहा कि हाँ हम लड़ेंगे, क्योंकि ये डिसीजन जो है लिया जाएगा। जहाँ तक गारो हिल्स का सवाल है, मुकुल संगमा एक टॉल लीडर हैं गारो हिल्स में, थ्रू आउट द स्टेट गारो हिल्स में उनकी जो है पकड़ खासी जनता दल से डेफिनेटली ज़्यादा है। तो गारो हिल्स में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि टीएमसी जो है सारे के सारे 24 सीटों में लड़ेगी। प्रॉब्लम टीएमसी का जो आता है वो है खासी और जयंत हिल्स में, और वहाँ पे शायद से पार्टी श्योर नहीं है अभी भी कि हम 60 सीटों में क्या हम कैंडिडेट उतार सकेंगे, क्या हमें कैंडिडेट मिलेगा, ये श्योरिटी नहीं है। अगर होता तो कहते हैं हम 60 के 60 सीटों में लड़ रहे हैं, एनपीपी जैसे कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं 60 के 60 सीटों में। ऑलमोस्ट 56-57 कैंडिडेट्स हमारे फाइनलाइज हो गए हैं, 3-4 बाकी है। उस कॉन्फिडेंस से टीएमसी आज के तारीख में भी नहीं कह पा रहा है, क्योंकि उसका जो कंसर्न है टीएमसी का, अभी हमने हाल ही में देखा एचएम शांगफ्लियांग, वो भी एक बड़े नेता हैं जो टीएमसी से बीजेपी पे कहीं ना कहीं खासी जयंत हिल्स में अभी भी ये फीलिंग है कि टीएमसी की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी उसको लेके जो खासी लीडर्स है, जयंत लीडर्स है, अभी भी थोड़े से एक डाउट में है, शायद से ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। टीएमसी अभी भी ये पता लगा रही है कि उसका जनाधार कहाँ बढ़ने वाला है, और ये समय ही बताएगा, तभी शायद वो पूरे अपने पत्ते जो हैं वो खोलेगी। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मेघालय पर चर्चा जारी रखेंगे।